રામનવમીનો કાર્યક્રમ દરેક વર્ષ કરતા જુદો છે. આપણે બહુ વખત સાંભળીએ છીએ કે ઉડા સબસે જુદા, એટલે કે કંઈક જુદું કરવું પડે, વેરાયટી રાખવી પડે. રોજ ખીચડી શાક જમીએ પછી આપણે ઉબક આવે એટલે થોડી વેરાયટી જોઈએ, એટલે થોડી વેરાયટી. અને પાછું ઘણા વખત મજાક પણ નથી કહેતા કે ઉડા એટલે ઊંધા. એટલે આ વખતે ખાલી આખા કાર્યક્રમમાં ઉપક્રમની જે વાત આવે ને, ત્યાં ખાલી રામનો જન્મ સમારોહ મહાઉત્સવ છે ને એનો ક્રમ જમાવવાનો છે. બાકી બધું ઊંધું છે. તો જુઓ, જમવાનું પહેલું, પછી ગુરુનો આશીર્વાદ, અને પછી જે માતા જેવા લવારી કરવાના છે એ બનના. આ વખતે લવારી નથી. દરેક વખતે પ્રેમજન મહારાજના દિમાગમાં કંઈક પડતરૂપ વિચારો આવ્યા કરે. એમાં આ વખતે એક યુવાનોથી પણ કદાચ બહુ સરસ સૂચન આવ્યું કે લાંબા પ્રવચનો, વિષય વસ્તુથી હટીને પાતા પ્રવચનોથી ઘણી વખત લોકો બગાસા ખાતા હોય છે અને પછી ન છૂટકે ગલીમાં જઈને તમાકુ ખાતા હોય છે, બહેનો અંદર જઈને નાસ્તો કરતા હોય છે. એટલે આ બધા પાપમાંથી બચાવવા માટે નક્કી કર્યું છે કે કંઈક એવું આપવું કે જે લોક ભોગ્ય હોય. લોકોને લોક ભોગ્ય એટલે કેવું? એમ તો લાડવા ભોગવાની વાત નહીં, લાપસી ભોગવાની વાત નહીં. વિચારોને પણ એનો પોતાનો ખોરાક હોય છે. લોક ભોગ્ય, લોકને રસ પડે એવું. જ્યારે લોક ભોગ્યની વાત આવે ત્યારે એક સુંદર, એક સરળ એક ઉદાહરણ આપું, એના પરથી તમને મળશે કે લોક ભોગ્ય શું કહેવાય. અસલ રામાયણ કહ્યું, વાલ્મીકી રામાયણ. જો સૌથી પહેલું રામાયણ લખાયું એ વાલ્મીકી રામાયણ. એના પછી બીજા 8 એમ કરીને કુલ 9 રામાયણ લખાયા. કયું રામાયણ સૌથી વધારે વંચાયું? વાલ્મીકી રામાયણ ના. કયું લખાયું? તુલસીકૃત રામાયણ. કારણ શું? લોક ભાષામાં લખાયું. સંસ્કૃત એ લોક ભાષા નથી, સંસ્કૃત એ દેવ ભાષા છે. આપણા રોજિંદા જીવન ક્રમની અંદર આપણે સંસ્કૃતનો ઉપયોગ નથી કરતા. એટલા માટે વાલ્મીકી રામાયણ વધારે પ્રચલિત ન થઈને તુલસીકૃત રામાયણ પ્રચલિત થયું. તુલસીકૃત રામાયણ અગેન ફરી વખત જોવા જઈએ તો એક ગ્રંથ છે, મોટો ગ્રંથ, અને જે વાંચવાના આદિ નથી એ તો ચોપડી જોઈને રામ કબીર અને ભગવાનના તાકે મૂકી દેવાનું અને રોજ વાલ્મીકી રામાયણના કે તુલસી રામાયણના દર્શન કરવાના. રામ કબીર પણ મોરારી બાપુની કથા હોય તો કેટલો મોટો સમૂહ ભેગો થાય. એક સરસ વક્તા હોય અને એ સરસ વક્તાની કથા હોય તો સમૂહ કેટલો થાય? 5 લાખ, 6 લાખ, 10 લાખ સુધી પણ થાય. જેવું આયોજન, જે વ્યવસ્થા. પણ રામાનંદ સાગરનું રામાયણ હોય તો રામની કથા વધારે ક્યાં પહોંચી? કોઈ મને જવાબ આપશે? વાલ્મીકી રામાયણથી, તુલસીકૃત રામાયણથી, મોરારી બાપુની રામાયણથી કે રામાનંદ સાગરના રામાયણથી? રામાયણની કથા વધારે છેલ્લા ખૂણા સુધી ક્યાં પહોંચી? સાઉથ ઇન્ડિયનના લોકો કદી પણ હિન્દી ભાષામાં રામાયણનો પાઠ નહીં કરી શકે. એમની ભાષા આખી મલયાલમ, તમિલ અને તેલુગુ ને કન્નડ છે. પણ હોશે ભારતના કોને રામાયણ સિરિયલ જોવે. એટલે લોક ભોગ્ય શું છે કે જો લોકો સુધી પહોંચી શકે, સંદેશો પહોંચાડી શકે, એ લોક ભોગ્ય કહેવાય. એટલે આજનો જે પ્રયોગ છે ને એ લાંબા પ્રવચનોને આપણે બદલીને આપણે શું લેવાનું છે? આજે સુરત એક બહુ સુંદર નાનું નાટ્ય છે. આજે બહુ સરસ સુંદર નાટ્ય છે અને નાટ્ય થકી જે કંઈ સંદેશો આપવા માંગીએ છીએ એનો એક પ્રયાસ છે. અને અમે વિચારીએ છીએ કે કદાચ તમને ગમશે, તમે વધાવશો. અને જો તમારો ઉત્સાહ, તમારો જો સહકાર, તમારો જે કહેવાય ને કે એપ્રિશિએશન અમને મળશે તો ફરી વખત નવા પ્રયોગો કરીશું. એટલે આજે આખો કાર્યક્રમનો ઉપક્રમ છે એ આખો જુદો છે. જેમ કહ્યું, જુદા અને મજાકમાં કહે છે ઉધા જમી લીધું એટલે હવે કોઈ કઈ બાજુ જોયે નહીં. બાકી મારા ક્યાં થાય ને નજર આપણે થયા. આજે કોઈની નજર એ બાજુ નથી, આજે બધી નજર કઈ બાજુ અહીંયા. અને જે ખરેખર જે પીરસાવાનું છે એનો આજે આરોપવાનું છે. બીજી એક વસ્તુ મને પ્રેમચંદ મહારાજે વાત કરી એ જે કહેવાય ને વંશાવત જોવા જાય ને તો
કોઈ આચાર્ય પદે બેસવાના છે કે બેસી ગયા છે કે ગુરુ પરિવારમાંથી છે, પણ એમનો જે અભિગમ ને વિચારો જે ખરા ને એ ધાર્મિક કરતા રાષ્ટ્રીયવાદી વધારે છે. જ્યારે અબ્દુલ કલામ ગુજરી ગયા ત્યારે મને યાદ છે, હું તો હતો નહીં પણ મેં વિડીયો જોયું એમના માટે લોઢી કાલે આપણે કાઢ્યો. આજે મને પ્રેમચંદ મહારાજે કહ્યું કે ભારતની સરહદ છે, ઠંડી સરહદ સિયાચીનની અંદર ભયંકર હિમપ્રપાત થયો અને તે આપણા સૈનિકો મરી ગયા. પઠાનકોટની અંદર આતંકવાદીઓએ હુમલો કર્યો અને આપણા સૈનિકોએ જીવ ગુમાવ્યા. સરહદો પર બાહ્ય અને આંતરિક દુશ્મનોથી આપણા સૈનિકોને બહુ ક્ષતિ પહોંચે છે. અને પ્રેમચંદ મહારાજે બહુ કડક શબ્દમાં, એટલે બહુ સરસ શબ્દમાં પણ કડક વાત કરી. તમને 33 કરોડ દેવતા બચાવે છે કે સૈનિકો બચાવે છે? કોઈ પાસે જવાબ છે? બધા પાસે છે, પણ સ્વીકારવું નથી. 33 કરોડ દેવી દેવતા તમને મને નથી બચાવતા. તમારે મારું રક્ષણ કોણ કરે છે? એ સરહદ પર રહેલા સૈનિકો. આજે આપણે સરહદ પર રહેલા સૈનિકોને યાદ કરવાના છે. નથી લોઢીકાર જ કરાવી, નથી 2 મિનિટનું મૌન પણ બોલવા જેવું કંઈ છે નહીં આપણી પાસે. પણ જ્યારે પણ આવી ઘટના ઘટે ત્યારે 2 મિનિટ ઘરે એકલા બેસીને કાસમોમાં લોઢીકાર જ ગાજો. અને જેને પોતાના કુટુંબના લાડકવાયોને ગુમાયા છે એના માટે પ્રાર્થના કરજો કે પરમાત્મા એમના પરિવારને પાછળ જે કહેવાય ને યોગક્ષેમ મહાવિનમ જેવું છે, એના પરિવારનું એના યોગક્ષેમનું વહન કરે. જ્યારે આવી વાત કરીએ ને ત્યારે ઝવેરચંદ મેઘાણી આવે છે. ઝવેરચંદ મેઘાણીની કવિતા પઠન કરીને હું તરત જ જે કામ છે કે પ્રેમચંદ મહારાજને પ્રવચન આપવાનું છે આપી દઈશું. પછી જગદીશચંદ્ર મહારાજના આશીર્વચનો છે અને પછી એક સરસ કાર્યક્રમ છે જે નાટક છે આંગળી ગોળ એ રજૂ કરીશું. અને પછી મહારાજશ્રી જે નાટકમાં જે કોઈ રોલ ભજવ્યો છે એમનો પરિચય આપશે. અને પછી આપણે રામ જન્મ મહોત્સવ જોઈશું. ઝવેરચંદ મેઘાણીની એક કવિતા છે એનું પઠન કરીને હું તરત જ બેમી દઈશ અને કાર્યક્રમ આગળ ચલાવીશું. રક્ત ટપકતી 100 જોડી સમરાંગણથી આવે, કેસર વર્ણની સમર સેવિકા કોમલ સેજ બિછાવે, ઘાયલ મરતા મરતા રે માતની આઝાદી ગાવે. 100 ગોળીઓ આંતરિક દુશ્મનો બાહ્ય દુશ્મનથી આવતી હોય અને જે છાતી પર ચિંતા હોય એવા સૈનિકો માટે શું કહેવું? કોની વનિતા કોની માતા ભગીની ટોળે મળતી, શોણિત ભીના પતિત વીરની રણસૈયા પર લડતી, મુખે ખમા ખમા કરતી, મીઠે કર મીઠો ધરતી. કોઈનો પતિ ગયો છે, કોઈનો પુત્ર ગયો છે, કોઈનો ભાઈ ગયો છે, છતાં પણ સ્ત્રીઓ ખમા કરે છે અને પોતાના પરિવારજનોના જે બલિદાન છે એને વધાવે છે. આવી હિંમત બહુ ઓછા લોકોમાં છે. ફરી વખત જ્યારે પણ આવી ઘટના ઘટે ત્યારે એકલા સમૂહમાં આંગળીમાં બેસીને લોઢીકારકનો પાઠ કરજો, વિઘ્નહરણના 5 વાક્ય જો, પણ સ્મરણ કરજો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે એમના પરિવારનું યોગ શક્તિ વહન કરે. અહીંયા હું મારો જે પરિચય આપવાનું તે પૂર્વ ભૂમિકા પૂરી કરું છું અને હવે પૂજ્ય પ્રેમચંદ મહારાજના આશીર્વચન લઈશું. પૂજ્ય પ્રેમચંદ મહારાજ. બોલો સદગુરુ શ્રી જ્ઞાનજી મહારાજ કી જય. લાડુ ખાયા નહીં? वर्षों बरस हम जो करते थे तो बाद में लागू मिल जाते थे, तो लगता था कि शक्ति नहीं रही होगी. तब तो लाडू खा के बैठे. कितने लोगों ने उपवास किया अभी? तो हमने अध्यात्म महोत्सव में जैन कैसे पुराने लोगों हमने सीख लिया था. बोले सद्गुरु श्री जीवानंद. हाँ, अब लाडू खाए. मैंने तो भूल क्यों जाते हैं? ऐसा क्यों हो जाता है? तो प्रिय बंधु, आज राम जन्म महोत्सव पर आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ.
आज अभी सुबह सुबह मैं इधर खड़ा था तो एक भक्त आए और आकर मुझे शुभेच्छा प्रदान की कि हार्दिक शुभेच्छा। तो मैंने कहा तो मैं तो उठाकर नारियल भी खा गया, पूनम नहीं देखी, अमास नहीं देखी, कुछ देखा ही नहीं है, अभी मेरा एक भी अपशुभन हुआ नहीं है, तो किस बात के लिए तुमने मुझे शुभेच्छा प्रदान की? समझ गए? बहुत सारे लोगों के दिमाग में मेरी बात नहीं है, ऐसे ही नहीं आती। तो हम किसी को शुभेच्छा देते तो किसको देनी चाहिए? जिनके जीवन में बार बार अपशुभन होते रहते हैं ना, कुछ न कुछ विघ्न आता है, उनको शुभेच्छा प्रदान देंगे, भाई तेरा काम सफल हो जाए। हमें तो असफल होता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि असफलता किसको कहते हैं। तो हम आज के विषय पर आ जाए। अभी हम सब तो भोजन करके आए हैं, कुछ लोग तो अभी अंदर इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे लाडू आएंगे, अभी शोर तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कुछ घर में बैठे बातें कर रहे हैं लाडू खाकर। तो जो लोग आते हैं वो कोई एक मन से नहीं आते हैं, एक विचारधारा से नहीं आते हैं। अभी मुकेश भाई ने बताया कि राम पर जो रामायण लिखी गई है, तो उन्होंने 9 रामायण की बात की कि यहाँ पर 9 प्रकार की रामायण लिखी गई है, मगर मुकेश भाई को पता नहीं है विश्व भर में 25,000 से ज्यादा रामायण लिखी गई, 25,000 से ज्यादा रामायण लिखी गई। और गुजरात के जाने माने लेखक नगीनदास संघवी ने उनके पर एक रिमार्क लिखी है कि इस सारे रामायण को एक मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ नहीं सकता। सत्य नहीं। अभी रामायण नाम आप कहते हैं वो हिंदुओं का देवता है, अभी रामायण हिंदुओं ने भी लिखी है, मगर रामायण की कथा इतनी प्रसिद्ध हो गई, प्रचलित हो गई, जैनों ने भी रामायण लिखी, बौद्धों ने भी रामायण लिखी। अब जैन और बौद्ध तो समझ लेते हैं कि वो तो भारत में ही वो धर्म का प्रादुर्भाव होगा, तो वो तो लिख सकते हैं, मगर रामायण मुस्लिमों ने भी लिखी। अल्लाह रामायण कहते हैं, रामायण मुस्लिमों ने भी लिखी। तो बहुत सारी रामायण लिखी गई, अपनी अपनी संस्कृति पर लिखी गई रामायण है, और सभी रामायणों में अपना अपना विचार प्रदर्शित किया गया। शायद सभी रामायणों से हम सहमत नहीं हो सकते, शायद कुछ रामायण पढ़कर हमें दुख भी होगा, बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते, ऐसा भी रामायण है। कुछ रामायण में ऐसा भी लिखा है कि सीता राम की बहन थी, बाद में राम ने उनके शादी की, ये भी रामायण में लिखा, कुछ रामायण लिखा है। दक्षिण की कुछ रामायण में ऐसा भी लिखा है कि सीता रावण की बेटी थी और राम से शादी की। तो मैं ये रामायण समझाने नहीं आया, मैं ये समझा नहीं आया। तो राम एक ही है और 25,000 प्रकार से रामायण लिखी गई है। तो ये हमारी विचारधारा प्रदर्शित करती है, मगर केंद्र में एक राम जो है वो राम ही, और राम का जो चरित्र है वो इतना अनूठा चरित्र है, उनसे हमें जो प्रेरणा लेनी है तो राम से लेनी है। क्यों लेनी चाहिए ये मैं नहीं बताऊं, क्योंकि रामायण तो प्रसिद्ध है,
राम की कथा मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती। क्योंकि राम की कथा तो बहुत ही सरल है, मगर सरल है इसीलिए ये प्रसिद्ध होगी ऐसा नहीं। मगर राम का जो चरित्र है, उनकी जो शिष्ट, उनके जो संस्कार, वो सारे विश्व के साथ जुड़े। सारे विश्व ने उनके संस्कार, उनके आदर्श जो है उनका स्वीकार किया। इतनी सारी रामायण क्यों लिखी गई? तो सारे विश्व को पता है कि राम के जो संस्कार है, राम के जो आदर्श है, वो हमारे लिए, और इसीलिए रामायण लिखी गई। राम का स्वीकार किया है, सभी धर्मों ने उनका स्वीकार किया। भारत के बाहर भी रामायण लिखी गई। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, विभिन्न देशों में रामायण लिखी गई है। और राम का आदर्श सभी धर्मों ने, सभी व्यक्तियों ने स्वीकार किया। और सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने भी हमें जो बताया है वो क्या बताया? तो यही तो बताया, हमारा जो धर्म है वो आचरण का धर्म बताया है। जीवन जी महाराज ने जो बताया है वो आचरण का धर्म बताया है। हम अपने आदर्शों को अपने जीवन में उनका पालन नहीं करेंगे तो इससे हमारा जीवन सफल नहीं होगा, ये जीवन बनने वाला नहीं। तो धर्म की बात है, तो धर्म की बात है सिर्फ किसको बताने के लिए नहीं, कहने के लिए नहीं, लिखने के लिए नहीं। और जीवन जी महाराज ने जो भी कुछ भी कहा, इसमें कुछ लिखा नहीं है। कोई मुझे आज भी नहीं पूछ सकते कि जीवन में कहां पर लिखा है, मुझे बताइए। हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, कहां लिखा है? जीवन में कुछ भी नहीं लिखा है। हमें वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं लिखा है। हम शादी क्या करते हैं ना, लग्न करते हैं तो सीता जी ने सोए लो, यही करना चाहिए, नहीं लिखा। कुछ लिख कर नहीं दिया है जीवन जी महाराज, मगर जीवन जी महाराज ने आचरण करके, उनका पालन करके हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा जो धर्म है वो आचरण का धर्म है, और आचरण भी कैसा? तो ऐसा आचरण कि दूसरे लोग भी उनका अनुकरण कर ले। आज हम सबको मालूम है, कई ऑफिस में जाते हैं, कुछ कागज की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले क्या चाहते हैं लोग? आपका फोटो आईडी मांगते हैं, फिर क्या कहते हैं? उनकी फोटो कॉपी निकाल के दीजिए, देनी पड़ती है ना। कुछ भी अर्जी करिए, कुछ भी ऑफिस में जाइए, तो अपनी जो आइडेंटिटी फोटो कॉपी है उनको निकाल कर देनी पड़ती है, तभी काम होता है। अभी तो बहनों को भी पता होगा, अभी गैस का सिलेंडर है, उनके लिए भी शब्द दीजिए, दिया था तो नहीं दिया, शब्द दिए फोटो को, वरना गैस का सिलेंडर बंद हो जाए। तो ये अनुकरण का काम है, और अनुकरण कैसा करना चाहिए? हमारी जो फोटो कॉपी हो कैसे निकलती है, कैसे निकलती है? जैसी असल में है ऐसी निकलती है, क्या दूसरी निकलती है? समझ में है? हमारा ही कार्ड है, हमारा ही चुप्पी कार्ड है, आधार कार्ड है,
और फोटोकॉपी निकालने जाए तो किसकी निकलेगी? हमारी निकलेगी, पड़ोसी वाले की निकलेगी। पड़ोसी की तो नहीं निकलेगी ना, हमारी ही निकलेगी। मगर जो हमारा कार है, अभी हमने घिस कर उनकी जो छवि है वो तो बहुत ज्यादा घिस डाली होगी, फिर हम फोटोकॉपी निकाल तो कैसे निकलेगी? तो सामने वाला ऑफिसर क्या कहेगा? ये आपका चेहरा दिखता, बोलेगा नहीं बोलेगा? ये आपका चेहरा दिखता नहीं है, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। तो जीवन की बात हमें जो फोटोकॉपी निकाल के दी है ना हमारे भक्त समाज की, और जैसा उन्होंने जो आचरण किया ना वही फोटोकॉपी निकाल के दी है। मगर हमने क्या किया? हमारी फोटोकॉपी को हमने घिस डाली, खरोच पड़ गए, लीटा फेल गया। फिर लोग रोने लगते, मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता नहीं है, मुझे डर लगता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वो इसको कैसे? अब पड़ोसी क्या कहेगा वो हमें सुनना है, कि हमारा दिल क्या कहता है वो हमें सुनना है। हमें क्या करना है वो हमें कहना है। तो जीवन ईमान ने पड़ोसी की नहीं सुनी, किसी दूसरे धर्म वाले क्या कहेंगे, किसको बुरा लगेगा, वो लगेगा, कहा? बिल्कुल नहीं कहा। इसीलिए जीवन में हमारे ऐसी फोटोकॉपी निकाल के दिया, बिल्कुल स्पष्ट फोटोकॉपी निकाल कर दी गई है, मगर हम हमारी फोटोकॉपी को हमने बिगाड़ दी। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है सिद्धांत, कि भाई शादी ब्याह करनी है तो ये सीताजी का सोलो गाना लो, रघुनाथ जी की घोड़ली का, केसर शादी का कोटरी गाना चाहिए, कंट्री दीक्षा धारण करनी है तो क्या करना चाहिए, वाणी का पद गाओ। समागम में कहीं पर भी नहीं लिखा है, आज तक मैंने नहीं पढ़ा। दूसरा धर्म में क्या होता है? कहने का अलग होता है, आचरण भी अलग होता है। संत साधु महात्मा जो होते हैं उनके धर्म के धर्मगुरु होते हैं, उनके सिद्धांत अलग होते हैं, शिष्यों के अलग होते हैं, उनमें भी स्त्रियों की भी अलग होते हैं, पुरुषों को भी अलग होते हैं, सबकी कार्य को भी अलग अलग ही होती है। और हमारी फोटोकॉपी एक ही है, हमारे लिए हमारे थोड़े अलग अलग हैं, मगर कार्बन कॉपी के एक ही नहीं करती, जो जीवन ईमान दिया वो ही नहीं करती। यानी कि यहाँ पर तो भेद नहीं बताया, जीवन ईमान में भेद दिखाया भी नहीं, बिल्कुल भेद नहीं बताया। मगर मुश्किल कहां पर होती है? गुरु महाराज बता दी, वो तो हम चले गए, हमने कुछ बात से लाकर अपनी फोटोकॉपी बिगाड़ दी, तभी मुश्किल इसको। तो आज राम की बात हम कर रहे हैं, तो राम इतने प्रसिद्ध क्यों हो गए? तो क्या राम की जो छवि, राम की फोटोकॉपी है, वो इतनी साफ सुथरी है कि सारे विश्व भर में राम छा गए, सबने स्वीकार लिया। इसीलिए 25,000 से अधिक रामायणें लिखी गई, विविध भाषाओं में लिखी गई, विविध प्रांत में लिखी गई है, विविध धर्मों में लिखी गई है। नाम क्या कर रहे हैं? पात्र बदलते हैं, संस्कार उनके बदलते हैं, मगर नाम एक ही है। यानी कि कार्बन कॉपी है वो राम की राम की है। तो इसी प्रकार जीवन में हमें जो बताया वो आचरण का धर्म हमें बताया।
हमारे पड़ोस को नहीं। और जीवन पाने में दिया बहुत कम, छुड़ाया ज्यादा है। मैंने बहुत बार कहा जीवन में देने के लिए कुछ नहीं दिया है हमें, सिर्फ हमें इतना ही कहा कि आदर रखिए। छुड़ाने के लिए जीवन का बहुत बड़ा लंबा लिस्ट, तप नहीं, तीर्थ नहीं, व्रत नहीं, होम नहीं, हवन नहीं, क्रिया कर्मकांड नहीं, वेद अध्ययन नहीं, मुहूर्त नहीं, बहुत कुछ ना भी, बहुत लंबा लिस्ट बना। क्यों छोड़? तो इन सबको पकड़ के बैठोगे तो फोटो कॉपी गंदी ही आएगी, अलग अलग ही आएगी, आपके साथ मैच कभी नहीं होगी। और दिया क्या दिया? तिलक, तुलसी, राम नाम और संत। एक संत संगत और बड़ा अनूठा शब्द है। अब संत संगत का मतलब तो ये नहीं है कि जैसे भगवान कपड़े वाले, ऐसे वेशभूषा करने वाले के साथ संगत में लग जाओ। मुझे देखकर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग मेरा परिचय करवाते हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, तो बेचारे को बेहोश हो जाता है। कुछ लोग का होश अभी भी नहीं आया है, ऐसे धर्म गुरु होते दिखते तो नहीं। तो संत संगत जीवन में जो बताई है, तो संत संगत करनी चाहिए, बहुत अनूठा शब्द है। अब जब तक तो शब्द हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं सकता। एक धर्म का जो पिलर वो यही से तिलक, तुलसी वो तो केवल हमारी पहचान के लिए, हमारी पहचान को प्रतीक चीज। तो यही हमें जीवन दिया है, इसी को ही समझना, इसी को ही समझना है और इसी को ही पकड़ना है। तो आज रामनवमी के दिन का जो मेरा जो संदेश है आप सबको, तो यही संदेश है कि राम के जो आदर्श वो प्रसिद्ध हुए। राम इतने प्रसिद्ध क्यों हुए? तो राम प्रसिद्ध हुए, इनके पीछे उनके आदर्श, उनके संस्कार, और इसीलिए पूरे विश्व भर में राम एक जान। और इस पूरे विश्व में बहुत सारी कथाएं, मगर राम पर जितनी कथाएं हुई थी किसी पर हुई नहीं। बोले देखो राम का ही बहुत सारे धर्मों को बताता और जो पता नहीं। अब मुझे समझ ऐसा नहीं है, विचार भेद की बात नहीं है। हाँ, हो सकता है राम की कथा के नाम पर वो अपने विचार को ठोक देते हैं, फिर भी उनको राम की बात तो कहनी ही पड़ती है। क्यों कहनी पड़ती है? राम के जो संस्कार वो सबके लिए सिद्ध होता है, विश्व और जीवन जीवन इसलिए हमें कहा कि संसार सुख सुनो। इस संसार में जो लोग आते हैं सब लोग सुख की वांछना करके, इच्छा करते रखते हैं कि मेरे पास सुख, मगर सुख कहाँ पर है? कि सुख हम पूरी जिंदगी ढूंढते रहते, सुख ढूंढते रहते, ये सुख कहाँ पर? अभी कुछ दिन पहले एक हमारी धर्म की एक बहन यहाँ पर नहीं रहती है, बहुत दूर रहती है, शादी भी दूर हो गई है। अभी सुबह सुबह व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज दिया कि इस जन्म में जो भी धन हम कमाते हैं, इनमें से हम आने वाले दूसरे जन्म में कुछ साथ में लेकर जाने वाले नहीं। सनातन सत्य कि इस जन्म में जो भी हमने धन संपत्ति पैदा की है, आने वाले जन्म में हम कुछ नहीं लेने वाले, लेकर जाने वाले, सब यहाँ छोड़कर जाने वाले।
मगर संसार का सनातन सत्य यही है। जन्म क्या होने वाला है ये तो किसी को पता नहीं है, मगर इस जन्म में जो रहना, इस जन्म में जो सफल होना है, तो बिना धन हम मनुष्य नहीं करें। जिनके पास संपत्ति नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, वो केवल पशु ही है, मनुष्य नहीं। मनुष्य तो वही कहलाता है जिनके पास धन संपत्ति कितनी होनी चाहिए, ये तो अपनी इच्छा अनुसार होनी चाहिए। अपने भाग्य की बात मत कीजिए कि मेरे भाग्य में नहीं है, भाग्य को लिखने नहीं आता। हमारे कुछ धर्मगुरुओं ने, धर्म प्रचारकों ने, कथाकारों ने लिख दिया है कि जन्म के 6 दिन बाद विधाता आती है, अपना कपाल पर भाग्य लिखकर चली जाती है। भाग्य विधाता क्या लिखती है मालूम है? भाग्य विधाता आकर क्या भाग्य में लिखती है मालूम है? भाग्य विधाता ऐसा नहीं लिखती है कि बेटा तो निर्धन ही पड़ा है, तो गरीब ही है, तो धनवान हो जाए, तेरे पास 4 गाड़ी होगी, तेरे पास बंगला होगा, तेरे पास किराए का ही मकान होगा। भाग्य विधाता ऐसा नहीं लिखती। और भाग्य विधाता सिर्फ एक ही शब्द लिख कर जाती है, और क्या लिखती है मालूम है? तथास्तु। भाग्य विधाता सिर्फ एक ही शब्द लिखकर जाती है, तथास्तु। ईश्वर ने इतना सारा जीवन दिया, मनुष्य जन्म दिया, विचार दिए, संस्कार दिए, ढूंढ लेंगे तुझे क्या चाहिए वो हमें ही ढूंढना है। तो हमारी भाग्य विधाता वही लिख कर जाते हैं, तथास्तु, और कुछ नहीं। फिर तो हमने और जो लोग धन को गाली देते हैं वो पूरी जिंदगी पर निर्धन ही रहते हैं। कुछ लोग तो निर्धन होने के बजाय तो उपदेशक बन जाते हैं, निर्धन है तो इनके कारण उपदेशक बन जाते हैं। पैसों तो आंकड़ों में आलोचना, ये तो माया के इनको कोई काम नहीं। तो मैं तो बड़ा कहता हूं कि भला आदमी इस जन्म में जो भी कुछ बचा कुचा है उनमें क्यों माया रखकर बैठा है? देखे मुझे बाहर के मंदिर वाले दूसरे धर्म वाले तो मांगते हैं ना, शिष्य को गुरु के उपदेश देता है। नहीं कोई मंदिर में जाओ, किसी भी धर्म में जाओ तो शिष्य को उपदेश क्या देता है कि देख बेटा ये तो सब माया है, वो तेरे काम की नहीं है, तू नरक में जाएगा, एक क्यों क्या कहता है? ये सब पूजे देते। अब इतने सारे गुरु कितने बड़े गुरु हैं जो हमारी चिंता करते हैं कि चेला नरक में न जाए इसलिए उनका धन ले लेता है, खुद नरक में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कितने नशीबदार लोग आप कि ऐसे भी गुरु हैं जगत में, खुद नरक में जाकर तैयार है। भला आदमी मेरे काम की चीज नहीं तो तेरे काम में क्यों है? फिर भी मांगते, फिर भी हमारे दिमाग की बत्ती नहीं खुलती है। तो मुझे माया माया कहता है और माया तो खुद मांगता है, तू भैया तो राम ने कभी ऐसा कहा कि मैं निर्धन ही रहूं? हमारे तो सब भगवान है, राम को देखो, कृष्ण को देखो, गौतम बुद्ध को भी देखो, महावीर को भी देखो, वो कहां पैदा हुए मालूम है? राजा के घर में पैदा हुए। राम भी राजा के घर में पैदा हुए, कृष्ण भी। वो भगवान गरीब के घर में पैदा हुआ है, बिल्कुल निर्धन के घर का। तो ये सब बात है, इसी बातों में इसीलिए जीवन ने हमें बताया कि माया हमारी आत्मा देव क्रिया के कारण हरि जन हरि मिले मरण को लगा
तो आचरण का धर्म, जीवन ने हमें आचरण का धर्म बताया। हमारा धर्म आचरण है, उपदेश का धर्म नहीं। और मैं यहाँ बैठा हूं आपको उपदेश देने के लिए नहीं बैठा, ये मेरा कर्तव्य ही नहीं है उपदेश देने। मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि आचरण का धर्म बस हमारी फोटोकॉपी को सुधार लीजिए। कुछ गलती से भी खरोच पड़ गई है तो उनको सुधार लीजिए, और यही मौका है सुधार। वरना कुछ लोग तो ऐसे ही लड्डू खा के सो गए होंगे, और कुछ लोग लड्डू खाकर बात भी गए होंगे। हमने ये कार्यक्रम सबसे पहले क्यों रखा मालूम है? जब तक हम लड्डू नहीं खिलाते थे, यहाँ बैठे बैठे क्या करते थे, बातें करते थे, ध्यान वहां पर जाता था। तो इसलिए हमने इस बार ऐसा प्रयोग किया कि भाई जिनको लड्डू खाना है वो खाकर चले जाए, ताकि हमें डिस्टर्ब न करें। हमारी फोटोकॉपी तो अच्छी निकले, आप भी हमारी फोटोकॉपी क्यों बिगाड़े? तो चले गए भी हो गए, अच्छा भी हुआ। हाँ, कुछ भक्तों का मुझे फोन भी आया था कि महाराज हमारी लाडवा के भागी जाए तो तब रोगा कोई नहीं है, कोई नहीं आपकी सुनेगा। तो बहुत अच्छा, ऐसे जो लोग लड्डू काका का जो भाग जाएंगे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। सब लोग बड़ा पुत्री ताकि हमें तो डिस्टर्ब न करें, हमें हमारा जो कर्तव्य करना है वो तो करने दें। तो हमारी फोटोकॉपी, मेरी फोटोकॉपी, आपकी बात मुझे नहीं मालूम, आपकी क्या बात है मुझे नहीं मालूम, मगर मेरी फोटोकॉपी अच्छी हो जाए इसलिए हमने ऐसे लड्डू पहले किए। अब आपको क्या करना है? आपकी फोटोकॉपी अच्छी निकालनी है या नहीं निकालनी है, ये आपको तय करना है। तो आज के दिन के लिए यही संदेश है कि सर्वश्री जीवन की अनंत कृपा हमारे पर बने, और जो संस्कार, जो आचरण का धर्म हमें बताया, बस उसमें चलने के लिए हमें प्रेरणा दे, शक्ति दे। यही अपने के साथ साथ सबको साझा આપણે 18 કેરેટમાંથી 22 અને 22 થી 24 કેરેટની યાત્રા તરફ છે સર્ટિફિકેટ બની બરાબર છે। રક્તદાનની શિબિર જલારામ છે, એ લોકો ભાગ લઈને આવ્યા છે, જેને જમી લીધું હોય અને મોટા હોય કોઈ આપી શકે એમ હોય તો રક્તદાન કરે, આપણી રાષ્ટ્રીય ફરજ છે। તો હવે પ્રેમચંદ મહારાજે બહુ સરસ વાત કરી કે હું અહીંયા ઉપદેશ આપવા માટે નથી, અને વાત સાચી છે કે અહીંયા ઉપદેશ આપવા માટે નથી, પણ જે રીતે મારો મિત્રતા, મારી એમની સાથે મિત્રતા છે, એમનો જે સંપર્ક છે પ્રમાણે એ હંમેશા લોકોને જગાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે। જાગો, અંધશ્રદ્ધામાંથી બહાર આવો, સાચી વસ્તુને પરખો, સાચી વસ્તુને અપનાવો અને સાચી વસ્તુને જીવનસ્થ કરો। જીવનજી મહારાજે આપણને ઉપદેશ કરતા શું આપ્યું છે? એવી જીવનશૈલી આપી છે કે જે જીવનસ્થ થાય, પુસ્તકોની જરૂર ના પડે અને આચરણથી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ। એવો સરસ માહોલ, એવો સરસ સમાજ જીવનજી મહારાજે આપ્યો છે। એવા જીવનજી મહારાજના વંશજ આપણા ગુરુવર્ય પૂજ્ય જગદીશચંદ્ર મહારાજના આશીર્વાદ આપણે લઈશું। પૂજ્ય જગદીશચંદ્ર